So today we talk about the stack. Okay, it's very simple and you already know it. So we should not have any issues. Okay. Now stack is, what is stack also called? They are basically called abstract data types, ADTs. These are the abstract data types, all the lists. You have linked list, you have the stack, you have the queue. We call them as an abstract data type. When you say abstract, abstract means something, when something is hidden, you don't know exact implementation. And it's a data type which actually does something, stores something. Okay. As far as we say stack, it stores something, but internally how it's how it stores, we don't know. Okay. Exact implementation inside, how it you know uses that memory and how it does things, that we don't care about. We only care about the functionality, what stack does. That's why this is called as an abstract data type. So the stack is one of the abstract data type, and which is like a pile, okay, like a bucket. If it is a bucket, you drop something, say this is an empty bucket, and you drop first thing into it, that goes on the bottom. You drop second thing into it, that goes on the top. That drops something into it, goes on the top, and so on. And one time will come, it will get filled. So, and the top is the guy which takes care of the top element. And if you want to retrieve things from it, you can only retrieve the top thing. Once the top is retrieved, you can go to the next. When this is no more, okay. When you have retrieved something, Safia. When you have retrieved something, okay, say for example, you retrieved this thing. Now this is, the top is pointing to this. Now you can access this. Okay. Now when this is done, you can retrieve the last thing. And when you retrieve the last thing, the stack is empty. The stack is empty. Okay. So these operations we already know. These are very simple, and you must be knowing all these things. Either we have the operation called push, or we have the pop, or we have the peek, or we have the print. We want to print everything, whatever is there. Okay. And there can be many more functions, like is empty, is my stack empty or not. That is empty method will tell us whether it's empty or not. This push, this pop, this peek, this print, this is empty. They're all methods. We can apply them. And abstract data type is like, we have a class. Okay, class itself is an abstract data type. Okay, where we have the data members and we have the methods. These methods will interact with the data. Okay, these methods will interact with the data. So you are actually, abstract means the implementation is hidden. Okay. Now, if we want to do this in a C++, so we need to have a class wherein we have the top and we have an array. If this, because the stack can be implemented using the array, or we can implement using the linked list. So first we talk about the array. Okay, today we talk about array, I guess, because I'm not feeling well, so it will be enough to talk about the array. Okay. Now you either have a push, you have pop, you have peek, you have the push does what? It pushes something onto the stack. Simple as it is. You have a stack, and initially your top is here. So top is equal to -1. This is your choice where you put the top. Either you can put top at the 0 location. Now this is an array. This is simple array which is having the some size. This is 0, 1, 2, 3, 4, and so on. And the max will be the total size of the array. Say for example, max is here 10 or 100 or whatever. So this much arrays, this much stack size you have. Okay, but this is a cup and I want to fill tea into it. Good. Condition check full much. Agar yes full karat fill, it will overflow. So jo ab push karoge, the push is to drop something into the stack, and stack, before you push something into the stack, you should check the condition whether the stack is full or not. Agar stack full too, then you should not push. You should say stack is full. Okay, because this has some limited memory. Similarly, pop. You pop something, the pop, you will pop the top element. You pop something.
You go on popping. When you pop, you actually decrement the top. Top नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा. एक वक्त आएगा ये empty हो जाएगा. There will be nothing to pop. So इसलिए pop करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कहीं ये empty तो नहीं है. ठीक है ना? अगर empty है और आप pop बोल रहे हो तो आपको उसको जवाब दोगे कि सर stack is empty, nothing to pop. Right? Push करने के वक्त हमें देखना है कि कहीं full तो नहीं है. ठीक है? अगर खाली है push हो सकता है. लेकिन अगर भर गया है, stack भर गया है, and you want to push something into it, definitely you will say कि भाई साहब ये तो full है, आप क्या भर रहे हो, overflow हो जाएगा, है कि नहीं? Size ही नहीं बचा, ठीक है ना? And peak means because push pop, अगर you pop the element to read, because pop means to read the element from the stack and push means to write the element onto the stack. बट द पीक जो आपका पॉप है वो डिस्ट्रक्टिव रीड होता है, क्योंकि वो पॉप करता है एलिमेंट और टॉप को नीचे लाता है, वो खत्म, यानी कि वो खत्म करता है उसको उसमें से, ठीक है ना? लेकिन जो पीक होता है, क्या पीक, पीक आपका हमेशा टॉप देखता है, टॉप में क्या है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो टॉप को उधर ही रखता है. यानी कि जैसे अगर अगर पास यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3 एलिमेंट्स, सो टॉप विल बी हियर, ओके, top will be here at the 3 location. If you pop से क्या होगा, 3 आपको प्रिंट हो जाएगा और top will point to this 2, means it this is destroyed in a way, okay. अगर फिर से pop अगर करोगे, pop will print what is here, that is 2 will be popped and it will destroy, top will point to the 1 last one. लेकिन जो peak है, peak में क्या होता है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 और टॉप्स को पॉइंट कर रहा है, peak will print what is on the top without destroying it and top stays there, and the top stays there. This is what the peak does. Peak क्या करता है, टॉप एलिमेंट बताता है टॉप में क्या है, और लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है. समझ में आई बात? सो अगर मैं पुश करना चाहता हूं, if I want to push onto the stack, ठीक है ना? If I want to push, this is very simple. Stack and queues you already know. It should be very easy and we should go very fast. You guys should tell me. Open up the mics and stop talking. So when I push onto the stack, so stack will be some kind of an, some kind of array. It will be, say for example, int a of size something, say 10 or 100 or whatever. So maybe I do hash define, okay, size is equal to 100, and I will say here int a of size 100, size. So hash defines a symbolic constant which will create a constant size of size 100, okay. और मैंने इस array की size कितनी दी, 100, या अगर मैं 10 रखूंगा तो this size will be 10, यानी कि आपको a जो आपकी array है, it will be given an array of size 10. Now this will act as your stack. Either you write it a or you write it stack, that's your choice, whatever you write it. Okay, now this an a means array because we are doing array representation. Initially top will be where? 0. -1. Yes, if you want to keep top at 0, that is also true, we can do that also. Top is 0. So अगर top 0 पे है तो आप एलिमेंट डालना चाहते हो, यानी कि उसका मतलब है कि टॉप वहां पे है जहां एलिमेंट डलेगा, ठीक है. तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करने के वक्त जब आप पुश करोगे, आप एलिमेंट इसमें डालोगे और टॉप को इंक्रीमेंट करोगे. ना टॉप इज देयर वेयर द एलिमेंट इज टू बी ड्रॉप्ड. लेकिन अगर टॉप -1 पे है, जो मैक्सिमम बुक्स और वगैरह जो इंप्लीमेंटेशन दिखाते हैं, दैट इज -1. टॉप हम फिलहाल -1 पे रखते हैं, बट दैट इज इमैटेरियल, यू कैन कीप इट एनीवेयर एज 0 और -1. फिलहाल हम -1 पे रखेंगे. उसका मतलब है कि एलिमेंट पुश करने से पहले उसको टॉप को प्लस करना चाहिए, वो यहां लाना चाहिए, है कि नहीं? बस में आई. So before I put element into the array, I should increment the top here. ठीक है ना? I should increment the top. Top should point here now. So top by 0. Now you can put element here. Again, you are calling push. So push करने से पहले top को पहले increment करो. Top will point to this, then drop the element here. Again, push करने से पहले top को increment करो. Top उस जगह होना चाहिए जहां खाली जगह है, ठीक है. और उसके बाद देखो कि भाई साहब वहां पे एलिमेंट करो. एक वक्त आएगा कि टॉप यहाँ पे होगा, एलिमेंट हमने भरे हैं, जैसे 20 आ गया.
सो इस वक्त टॉप जो है वो कहां पर है, मैक्सिमम एलिमेंट, यानी कि इसकी जगह खाली नहीं है, अब जगह अब खाली नहीं है। और वो कौन बताएगा कि ये अगर टॉप आपका जो मैक्स आपका होगा -1, क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं ना, 0 1 2, अगर एक 10 था 0 to 9 होगा ये, यानी कि 9 पे अगर टॉप है दैट मीन मैक्स -1, जो मैक्स मेरा था 10 अगर था मैक्स, उसका -1 करेंगे दैट इज 9, यानी कि अगर टॉप 9 पे आ चुका है तो उसका मतलब है एलिमेंट क्या है, Stack is full. स्टैक इज फुल। अगर आपकी Full. जैसे हिना ने कहा कि टॉप 0 पे रखेंगे, तो उस सूरत में अगर आपका एलिमेंट यहाँ पे है, टॉप गया होगा आगे, टॉप 10 पे गया होगा, अगर 0 शुरू किया टॉप 10 पे गया होगा, उस वक्त मैक्स -1 नहीं बल्कि मैक्स ही चेक करना है। अगर टॉप मैक्स पे आ गया है तो उस सूरत 10. में स्टैक फुल है, वो आपके पास इंप्लीमेंटेशन है, आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पहले जो मैं काम करूंगा वो जो मैं आपका स्टैक बनाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो मैं बनाऊंगा स्टैक, उसका मुझे एक क्लास चाहिए पहले, ठीक है ना। आई नीड ए क्लास, I need a class. This is my class of a stack. ठीक है। अगर आप देखोगे पहले यहाँ पे हैश डिफाइन मैक्स, आप जितना रखना चाहते हो 100 10 20 जितना रखना चाहते हो उतना, मैंने सिंपल 10 रखा है ताकि स्मॉल हो जाए। इस प्रोग्राम को हमें थोड़ी सी चेंज करनी है, ओके। फिलहाल मैंने ये कॉपी किया ये वहां से, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। हैश डिफाइन मैक्स 10 है। उसके बाद जो क्लास स्टैक आपका होगा उसमें पहले ही आपका टॉप है, और आप देख रहे हो ये प्राइवेट सेक्शन में है, लेकिन टॉप कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड। इनफैक्ट आपको जो इंट a ऑफ साइज मैक्स मैंने दिया है, दिस a विल एक्ट एज अ स्टैक, यानी कि आपको दिया जाएगा, अब मैं ऐसे दिखा रहा हूं, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे एरे हम दिखाते हैं, ये एरे ऐसे दिखाओ या ऐसे, अब स्टैक हम ऐसे दिखाते हैं, वरना वो एक ही बात है। a ऑफ साइज मैक्स यानी कि 0 to 9 आपको मेमोरी दी गई, चाहे आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, 0 to 9 मेमोरी आपके पास है, ठीक है ना। और ये रहा कंस्ट्रक्टर स्टैक, बिकॉज इट्स द सेम नेम एज दैट ऑफ एन क्लास, so it's a constructor and it has no parameters, so it's a default constructor, so it is a default constructor, ठीक है ना, समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। so it's a default constructor here, और जहां इनिशियली यानी कि जब इसको कब कॉल होगी, जब जब object ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, whenever I create an object of it, ठीक है। उस सूरत में जो स्टैक जैसे स्पार्स मैट्रिक्स हमने बनाया उसमें भी हमने रखा था कंस्ट्रक्टर अनपैरामीटराइज्ड, और वो जब क्रिएट करता था ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था खाली ऑब्जेक्ट होता था, उसमें 4 चीजें होती थी, ठीक है। लिंक, आई वैल्यू, सी रो वैल्यू, कॉलम वैल्यू और डेटा, और लिंक में लिंक कुछ नहीं बरता था उसमें। यहाँ पे जो आपका जब इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसमें टॉप को -1 आ जाएगा, आपके टॉप पे -1 आ जाएगा, जो एरे ये क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आपको एक एरे क्रिएट हो जाएगी ऑफ साइज 0 to 9, ठीक है। और टॉप खड़ा हो जाएगा आपका वेरिएबल इस क्लास के अंदर, ठीक है, और जिसमें होगा -1 इनिशियली, दैट मींस टॉप इज पॉइंटिंग टू वेयर, हियर। लेकिन अगर आप 0 से शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे, उस हिसाब से आप काम करोगे, जो आपकी मर्जी होगी। फिलहाल टॉप -1 पे रखो, और इस क्लास के ऊपर कुछ मेथड्स होंगे, वो मेथड्स वही हैं जो ऑपरेशन स्टैक पे करते हैं, ठीक है। एक पुश ऑपरेशन है, एक पॉप है, एक पीक है, एक इज एम्प्टी है, और एक प्रिंट हम करेंगे ताकि हम सारा एलिमेंट प्रिंट करें, देखिए स्टैक में क्या क्या है, ठीक है। बट प्रिंट विल बी नॉन डिस्ट्रक्टिव, उसको टॉप के साथ कुछ वास्ता नहीं है। लेकिन पुश और पॉप जब करेंगे वो टॉप को डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि दे आर डिस्ट्रक्टिव। अगर आपको पॉप करना है तो डिस्ट्रक्टिव, वो तो एक एलिमेंट क्या है इसमें, उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा साथ, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्वेश्चन, सिंपल ही है। देखो जब तक आप लोगों में आबिर बट तूने कैमरा क्यों ऑफ रखा है भाई, सुहेब, साफिया, मसला क्या है आप लोगों का, पीर अंजुम, हिना फयाज, ओपन अप द कैमरास, विदाउट कैमरा नहीं मुझे चलता, थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है, मुझे एग्जिट होता है वरना। कैमरा से एग्जिट नहीं होगा, डोंट टेल मी दैट यू आर ट्राइंग टू सेव द डेटा, आई अंडरस्टैंड दैट, बट झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर कनेक्टेड विद दिस, व्हेन यू आर सर और कनेक्ट, मेरा पता नहीं आज नेटवर्क इशू है इसीलिए। आप कैमरा ऑन करो, यू ऑन द कैमरा, ठीक है।
सुने मेरी बात दूसरी, देखिए आप मैं कभी जो ये है कि बताता हूँ आप कमजोर हो, आप ये हो वो हो, एक्चुअली आई वांट यू गाइस टू लिफ्ट अप, लेकिन बहुत कोशिश मैंने की, कुछ साथ बेइज्जती, कुछ साथ ये वनियत, कुछ साथ हो वनियत, कुछ फेलियर, कुछ साथ ये मतलब ये, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि वो उनमें वो नहीं है, वो चीज वो आ नहीं रही है, पढ़ नहीं रही है, प्रॉपरली से पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क ये दो चीजें होती हैं, जब तक ये बच्चे में नहीं आएंगी वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलर क्लास देना, रेगुलर आप पढ़ना, आप आधा घंटा ही क्यों नहीं सब्जेक्ट को देते हो, लेकिन रेगुलर पढ़ना, उससे चेंज आती है। व्हेन यू डू इट इन अ रेगुलर वे यू विल फाइंड अ टेंजिबल चेंज। जैसे मेरा जो है, मैं कम से कम 2 लाख का, अराउंड 2 लाख मैंने वेट लिफ्टिंग का सामान लाया है घर में, मैंने पूरा जिम बनाया है टॉप फ्लोर में, पूरा जिम, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं 2 दिन करूंगा, 3 दिन फिर बैठूंगा, 4 दिन करूंगा, तो मुझ में टेंजिबल चेंज नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंसी से करूंगा, यू विल सी माय मसल्स विल बी ऑल अराउंड एंड आई विल बी ए परफेक्ट काइंड ऑफ अ बॉडी बिल्डर। सो टेंजिबल चेंज नहीं आती है जब तक रेगुलरिटी नहीं हो। तो इसी तरीके से अगर आप स्टडीज के ऊपर रेगुलर नहीं है, आप एक दिन आते हो, आधा दिन नहीं आते हो, आधा आते हो, दूसरे क्लास में नहीं आते हो, और उसमें बैकअप नहीं करते हो, तो मैं ये बता रहा हूँ सबको, व्हेन यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू बी वर्किंग, सो उसमें आपको टेंजिबल चेंज दिखेगी, आपका कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, यू विल बिकम ए बेटर स्टूडेंट। वरना आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है ऐसा जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, यू ऑल आर कैपेबल स्टूडेंट्स, ओनली थिंग इज कि आपको ध्यान लगा के मेहनत करनी है कंसिस्टेंसी के साथ, वरना आप सारे के सारे कैपेबल हो, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत बार आपको ये बोला कि शायद कि आप यू आर वीक स्टूडेंट, ऑल इट्स ओनली टू अपलिफ्ट यू गाइस, नॉट टू टेल यू आर वीक, ताकि आप अपने आप में चेंज लाओ, ठीक है। अदरवाइज आई मस्ट से यू आर ऑल कैपेबल स्टूडेंट्स, आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी से नहीं पढ़ोगे तो वो कैपेबिलिटी रोज तापस। सो एनीवेज, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ काम, यहाँ पे मैं मेथड्स जो मेरे ऑपरेशंस हैं उन पीरंजुम यू शुड ओपन अप द कैमरा, जो मेरे मेथड, जो मेरे ऑपरेशंस हैं, जैसे पुश पॉप पीक है, वो मेथड होने वाला है। और आप देख रहे हो सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है, पहली चीज, अगर सी प्लस प्लस आपने पूरे से नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ या तो iostream.h आप लिखोगे, तो फिर आप ये नेम स्पेस नहीं लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन एनसी प्लस प्लस उसमें हम यूजिंग नेम स्पेस करते हैं, क्योंकि 3 तरीके होते हैं सी प्लस प्रोग्राम करने में। एक तरीका होता है कि विदाउट एनसी प्लस प्लस, उसमें आप iostream.h लगाते हो, नेम स्पेस नहीं लगाते। दूसरा, आप नेम स्पेस इस्तेमाल करते हो, एसटीडी स्टैंडर्ड है हमारे पास, लाइब्रेरी होती है एसटीडी स्टैंडर्ड नेम स्पेस, ये हमारे पास होता है, जिसमें हमें हेडर लगाने की जरूरत नहीं है, iostream कहना है खाली, दैट्स इट। तीसरा होता है STL, ओके, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। हमारे पास असल में सी प्लस प्लस काम करते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से, जो मेन आप डेवलपमेंट करोगे अगर सी प्लस प्लस का, तो उसमें स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इस्तेमाल करोगे, वहां पे आप ये हेडर फाइल दिखोगे, वहां टेम्पलेट लाइब्रेरी की हेडर फाइल्स होंगी, दैट विल बी टोटली डिफरेंट, राइट। वहां पे रेडीमेड स्टैक आपको मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, स्टैक बन के है, डेटा टाइप बन के है, वहां आपको सिर्फ ऑपरेशंस करने हैं जो भी करना चाहते हैं, और ऑपरेशन भी बन के हैं, पुश पॉप सारे बन के हैं, आपको खाली उनको कॉल करना है। सो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग सी प्लस प्रोग्राम्स, लेकिन अभी हम बिगिनर्स हैं तो इसलिए हम सिंपल कोड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। तो सी प्लस प्लस में दूसरी बात है कि जो या तो आप मेथड्स को उधर ही लिखते हो, आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोटोटाइप्स खाली है, यहाँ टर्मिनेटर है मेथड के बाद, टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर है मेथड के बाद, यानी कि मैं इसको चाहता हूं कि क्लास के बाहर डिफाइन करूं, हालांकि है क्लास के अंदर ही, तो मैं इन मेथड्स को क्लास के बाहर, या तो मैं इधर ही लिख सकता हूं, मैंने लिखा बूल पुश, बूल लिखा मैंने पुश int x, now bool is a data type of boolean which is true or false, now it is a return type of it, यानी कि ये जो मेथड मेरा है ये लास्ट में रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है, रिटर्न टाइप ये है इसका बूल। या तो मैं ये मेथड जो भी है, जो भी इस पे लिखना चाहता हूँ वो यहीं पे लिखूंगा, लेकिन उससे क्लटर हो जाएगा, क्लास विल गेट क्लटर्ड, और क्लास हमें नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि भाई साहब इसमें ये डेटा है और इसमें ये मेथड्स है। लेकिन अगर मैं मेथड को लिखना शुरू करूं इधर ही, फिर कुछ समझ नहीं आएगा क्लास क्या करता है।
So these are like buttons here. Push, pop, peek, empty. मुझे सीधे समझ आ रहा है कि भाई क्लास के अंदर पुश, अगर मैं पुश मेथड यहीं पे लिखना शुरू करूं, सो ये बड़ा लाइन कोड बन जाएगा, फिर पुश नीचे, पॉप नीचे आ जाएगा, वो लिखना शुरू किया, और मुझे पूरा अगर मैं एक नजर इसको देख रहा हूं, मुझे एक नजर से समझ आ रहा है इस क्लास के अंदर टॉप है और मैक्स है और ये ऑपरेशंस है, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास तरीका है कि हम मेथड्स को लिखते नहीं है क्लास के अंदर, हालांकि वो क्लास के अंदर ही है, लेकिन सिंटेक्स दिया गया है कि आप बाहर भी लिख सकते हो, ताकि आपको आराम से पता चले कि क्या क्या मेथड्स इस क्लास के अंदर है। वो बाहर अगर लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे अब ये पुश मेथड लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना, अब ये पुश मेथड मैंने लिखना शुरू कर दिया, किधर, बाहर। मैं लिख रहा हूँ पुश इंट एक्स, ये वाला लिखा मैंने, ये पुश इंट एक्स, और बूलियन इसका है, क्योंकि मैंने क्लास के बाहर लिखा है, तो ये किसी भी क्लास का हो सकता है। मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास नहीं है, दो क्लास है, तीन क्लास है, चार क्लास, अब किस क्लास का है, तो वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यानी कि डबल कोलन करके मुझे बताना पड़ता है कि ये किस क्लास का है, और कुछ इसको घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी प्लस प्लस है। यानी कि स्टैक इज द नेम ऑफ द क्लास, जो नेम ऑफ द क्लास है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दिस इज दिस डबल कोलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बताता है कि ये जो मेथड है ये किस क्लास का है, क्योंकि मैं लिख रहा हूं ये क्लास के बाहर, क्लास एंड यहां होता है, ठीक है ना, सिंपल। अगर मैं क्लास के अंदर ही लिखना शुरू करूंगा, ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्लास में क्लटर बढ़ जाएगा, मुझे समझ नहीं आएगा क्लास के अंदर मेरे कौन से मेथड्स। इसलिए हमें कहा जाता है कि आप क्लास के बाहर लिखो, लेकिन ये बताने के लिए कि ये किस क्लास का है वो इसको बताओ, यूजिंग द क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। समझ में आई, कोई कंफ्यूजन? तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं अगर पता नहीं है। यहाँ पे क्लास नेम और स्कोप ऑपरेटर बता के यही मेथड लिखो आप। यहाँ प्रोटोटाइप खाली है या टर्मिनेटर है, तो अब लिखो ये पुश। तो पुश जब आप करोगे, व्हेन यू वांट टू पुश, व्हाट यू विल डू, इफ यू वांट टू पुश, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू इन अ पुश? check the condition, ये stack full तो नहीं है। Exactly. So this is my push operation. It returns boolean. It returns boolean means true or false. So here it will return either true or false. When will it return false? It will return false if top is greater than or equal to max minus 1. What does this mean? Can anyone tell me? Tabir, but tell me this thing. What does this mean? If top is greater than or equal to max minus 1. मैंने ये अभी बताया आपको. Unmute yourself, शाबाश बेटा. Unmute, आप बोल रहे हो लेकिन आपका म्यूट है. जो स्टैक टॉप है, अगर वो ग्रेटर देन है स्टैक साइज से, तो ये प्रिंट करेगा मैसेज स्टैक इज फुल या ओवरफ्लो की मैसेज। यानी कि उसका मतलब है कि हमारे पास टॉप ग्रेटर देन मैक्स नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स माइनस 1। क्यों मैक्स माइनस 1 क्यों किया मैंने? सर 0 से स्टार्ट करते हैं ना इंडेक्स। एग्जैक्टली। सो अगर मेरा साइज 10 है तो 0 - 1, अगर ये उसके बराबर है या उससे बड़ा है तो उसका मतलब है कि स्टैक फुल हो चुका है, तो मैं मैसेज दूंगा स्टैक इज फुल, स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। इसलिए क्या पुश ऑपरेशन हो गया? नहीं हो गया। क्या पुश ऑपरेशन हो गया? इसलिए मैं रिटर्न क्या करता हूं? फॉल्स। दैट्स द रिटर्न टाइप इज बूल। द बूल मींस ट्रू और फॉल्स। वरना कब जाएगा? वरना कब, एल्स में कब जाएगा ये? जब स्टैक फुल नहीं होगा, जब कुछ जगह बची है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले प्री इंक्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि फर्ज कीजिए टॉप यहाँ पे था -1 पे, तो पहले टॉप को आप ले जाओ इधर, सो प्री इंक्रीमेंट करो। सो a प्लस टॉप इज इक्वल टू x। इसका मतलब है पहले आप टॉप को इंक्रीमेंट करो, उसके बाद x है वो डालना है इसमें, ठीक है। प्लस अगर मैं करूंगा a टॉप प्लस ऐसे करूंगा इज इक्वल x, तो पहले x टॉप पे गिरेगा, उसके बाद टॉप इंक्रीमेंट होगा। तो इस सूरत में जब मेरा टॉप -1 पे था, अगर मैं करूंगा टॉप प्लस इज इक्वल x, तो मतलब है पहले यहाँ पे जहां ये है वहां x डालो, उसके बाद टॉप इंक्रीमेंट करो। वो नहीं करना हमें, हमें पहले इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि टॉप यहाँ पर है जहां खाली जगह है -1 पे। तो पहले टॉप को इंक्रीमेंट करो, प्लस प्री इंक्रीमेंट करो, उसके यानी कि टॉप को पहले इंक्रीमेंट करो, यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद x डालो यहाँ पे। तो x वो मैं भेजता हूँ, इसको पुश ऑपरेशन को मैं x भेज रहा हूँ, है ना। सो वेयर फ्रॉम आई, सो दैट मींस जहां पर भी मेन को, उसका मतलब है कि जहां पर भी मैं मेन में इस पुश को कॉल करूंगा, आई विल सेंड द x। सो यानी कि जहां पर भी मैं इसको पुश को ये भेज रहा हूं, देयर आई सेंड दैट डेटा टू इट, एंड दैट डेटा इज कॉपीड टू x, दैट्स कॉपीड टू
x. In fact, in the main, we will say like this. In data, इसके बाद हम ऐसा करेंगे, हम कहेंगे do, प्रॉपर्टी करेंगे, ये प्रॉपर्टी नहीं है, while ch is equal to 1, तब तक करते जाओ, और यहाँ पे मेरे पास एक चॉइस होगी ch, ओके, ट्रू और यस और नो भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, कैरेक्टर ch भर दो, लेकिन f फ्लश stdn करना है फिर, ताकि कीबोर्ड साफ करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर आप एक कैरेक्टर पकड़ते हो तो वो कीबोर्ड से लेता है, इसलिए पहले कीबोर्ड साफ करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर लोगे, दैट्स f फ्लश stdin उसकी फंक्शन है, तो उससे कीबोर्ड साफ होगा, फिर आप ले सकते हो। वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अभी छोड़ो उसको, इसलिए मैं सिर्फ इंटीजर ले रहा हूँ, डायरेक्ट इन डेटा ch ले रहा हूँ मैं। अगर ch 1 है तो फिर से करो। यहाँ पे आप क्या कहोगे, सी आउट कहोगे आप, Enter more. press 1 to push, okay, \n, press 2 to pop, Pop. \n, press 3 to peak, \n, और भी कुछ कर सकते हो, जैसे हमारे आपकी press 4 to print, 4 पे आप प्रिंट करना चाहते हो इसको, ठीक है ना। और ये मैं पकड़ूंगी इसमें into cin into the ch, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, cin into the ch, press 1 to push, press 2 to pop, press 3 to peak, press 4 to print, पुश पॉप पीक और प्रिंट कर रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है, और ले रहा हूं किसमें, मैं चॉइस में। अब इस ch को मैं क्या करूंगा, इनटू द स्विच केस, Switch. switch, स्विच केस में लगाऊंगा मैं ये ch, CH. ठीक है, जैसे मैं कर देते हैं Yes. हम, क्या ना ये, ठीक कहां से Yes, sir. खोलो कुछ। अब इसमें केसेस होंगे, केस 1 Case 1. Push. ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक, और केस 4 ब्रेक, ठीक है ना। बस डिफॉल्ट में हो जाएगा, फिर अगर डिफॉल्ट लिखोगे तो उसमें लिखेंगे कि भाई साहब रॉन्ग चॉइस है। अगर 1 2 3 4 आपने दिया, केस 1 में क्या करना चाहते हो आप, पुश, तो मैं यहाँ पे ये करूंगा, आई विल कट दिस, कट, इसमें लगाऊंगा मैं कंट्रोल V, सी आउट, एंटर डेटा टू पुश इनटू द स्टैक। अब पुश करना चाहते हो, बताओ कौन सा डेटा पुश करना चाहते हो, वो डेटा में भरेंगे, और वी विल कॉल s डॉट पुश, विल कॉल व्हाट, s डॉट पुश, और यहाँ पे मैंने क्लास स्टैक का s बनाया ऑब्जेक्ट, ओके, आई क्रिएटेड द s एंड आई एम सेइंग s डॉट पुश, ठीक है ना, ठीक है, मैंने क्लास स्टैक का s बनाया, यू कैन डू लाइक दिस आल्सो, और इस s is a reference variable of that class. Now उसका जो push operation है, उसका जो क्या है, push operation, this one, ये ऑपरेशन पुश, जो इसका प्रोटोटाइप ये था, और यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका जो पुश ऑपरेशन है, इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, और जो भी मैं पुश करूंगा वो दिखेगा कहीं टॉप तो फुल तो नहीं हो गया, अगर फुल हो गया है तो फिर वो बताएगा कि भाई साहब फुल हो गया है, वरना वो उधर डालेगा और टॉप को प्लस प्लस करेगा, सिंपल एज इट इज, और रिटर्न करेगा ट्रू, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, ठीक है। केस 2 में क्या करना चाहते हैं हम, पॉप, तो मैं ये हटाऊंगा सारा अभी पुश का मसला, क्योंकि ये सारा इसी में हो जाएगा, कंट्रोल Z, हाँ ये पुश वाला कस्सा सारा खत्म हो जाएगा,
AC में मैंने किया, अब इसमें पॉप करेंगे हम। I will cut this here and वो किस में करेंगे हम कि अगर 2 प्रेस किया इसने सी आउट एस डॉट पॉप और मैं बोलूंगा पॉप फ्रॉम स्क्रैच बैकस्लैश पॉप फ्रॉम स्क्रैच, एस डॉट पॉप रिटर्न करेगा वो एलिमेंट जो कि टॉप पे होगा, टॉप को माइनस माइनस होगा, ठीक है। लेकिन जो ही मैं पॉप करूंगा, क्योंकि ये पॉप फंक्शन किसकी है, उस क्लास की, तो उसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, एस डॉट पॉप कहना पड़ेगा। सो एस डॉट पॉप करके जो पॉप एलिमेंट हो जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे और वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जब मैं पॉप करूंगा, ये पॉप मेथड है, ठीक है ना, मैं यहां पे देखूंगा कहीं ये जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। इफ टॉप इज लेस देन 0, उसका मतलब क्या हो गया, स्टैक इज एम्प्टी। When will be stack empty? Stack is empty. When top is less than 0. So that means stack is empty. So stack is empty, stack underflow, return 0, तो 0 रिटर्न करो, उसका मतलब है कि प्रिंट कुछ नहीं होगा, 0 प्रिंट होगा, ठीक है। वरना x इज इक्वल टू 8 टॉप माइनस माइनस, तो पहले 8 ये पोस्ट डेक्रीमेंट है, पहले टॉप जो आपका है उसमें जो एलिमेंट है वो x को दे दो और फिर टॉप को माइनस माइनस करो, क्योंकि ये पोस्ट डेक्रीमेंट है, ठीक है ना। ताबिर बट ओपन अप द कैमरा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए इसमें एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3 और टॉप कहाँ है, यहाँ। सो जब आप पॉप को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे पॉप को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए ऑफ टॉप, ये इसका नाम है ना ए ऑफ टॉप, ये टॉप में क्या है 3, सो 3 चला जाएगा x के अंदर, ठीक है, ये वाला एलिमेंट चला जाएगा x के अंदर, ठीक है, हो गया। और टॉप को क्या हो जाएगा, उसके बाद पहले असाइनमेंट होगी, उसके बाद माइनस माइनस होगा, क्योंकि एक पोस्ट डेक्रीमेंट है। तो अब टॉप उधर गया, उसके बाद टॉप नाउ पॉइंट नॉट पॉइंट टू दिस, टॉप विल पॉइंट टू दिस, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड। एंड इट विल रिटर्न दैट x, इट विल रिटर्न दैट x। अब रिटर्न x कहां पे जाएगा, इंट जो हमने ये किया था, इंट पॉप। हाँ जहां पे हमने ये किया था, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, क्लोज इट, ये रिटर्न होके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कॉल हुई थी, और वहां उस जो एलिमेंट जो x वहां पे आपने रिटर्न किया उसको प्रिंट किया करेगा सी आउट, और साथ में मैसेज देगा पॉप फ्रॉम द स्टैक। अगर हम इतना ही करेंगे फिलहाल, ओके, ये पता नहीं यहाँ से क्या, इसको बंद करेंगे फिलहाल, ठीक है ना। लेट अस रन इट, क्लियर स्क्रीन करना चाहिए इससे पहले। वो क्या रहा है, कहाँ है, इस स्क्रीन पे तो नहीं आ गया, आउटपुट विंडो कहाँ गई है, हाँ यहाँ आ रहा है, अब इस स्क्रीन पे आ रहा है। प्रेस 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू पीक, 4 टू प्रिंट। पहले पुश करूंगा मैं, एंटर डेटा टू पुश इनटू द स्टैक, से 22, फिर से बताएगा 22 पुश ऑन टू द स्टैक, बता रहा है मैं 22 पुश ऑन टू द स्टैक। अब मैं प्रेस 1 करूंगा, एंटर द डेटा टू पुश ऑन टू द स्टैक, से 33, प्रेस 1 टू दिस, एंटर डेटा पुश ऑन टू स्टैक, से 44, 44 पुश ऑन टू द स्टैक। अब मैं पॉप करना चाहता हूँ 2, तो पॉप कौन होगा, 22 33 44, पॉप कौन होगा 44. yes, so 2, press 2, so 44 popped from the stack and so on। यहाँ पे ये वापस क्यों नहीं आया, प्रेस, अच्छा यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मगर ये यहाँ पे गड़बड़ किया हमने, कुछ है क्योंकि ये भाग गया, भागना नहीं चाहिए ना पॉप के बाद। अच्छा हमने एक चॉइस मांगी ही नहीं है, हमने चॉइस Maintenance out, see out. while ch is equal to 1, हाँ, तो यहाँ पे हमें आई डोंट नो कि कैसे ये कर रहा था, क्योंकि ch में 0 होगा पहले, तो पहले यहाँ पे चॉइस मांगनी पड़ेगी ना इससे। यहाँ पे हो रहा है ये स्विच केस खत्म है, स्विच एंड्स हियर, तो उससे पहले हम कहेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, सी आउट, प्रेस 1 टू कंटिन्यू, ठीक है ना। See, see, और वो किस में डालेंगे हम, CH. in into the ch,
ठीक है। और अगर ch1 इसने डाला तो कंटिन्यू होगा। और यहाँ पे पहले डू के बाद पहले क्लियर स्क्रीन करेंगे। हाउ सिस्टम, System CLS. ठीक है ना। ओके, अभी आराम से करेगा हमें काम। इसको पता नहीं टाइम क्यों लगता है काम करने में। इस स्क्रीन पे आता है असल में। प्रेस 1 टू पुश, करेंगे पुश, एंटर डेटा 22 push it, press 1 to continue. Yes, I want to continue. It's coming clear the screen, going back to the do. Okay, again asking for what you want to do. I will say push, enter data 33, press 1 to continue. 33 is push it. Yes, I again want to push, enter data to push into data, say 55. Now I want to continue, but this time I want to pop 2. So 55 हो गया pop. अब उसके बाद मैं फिर से इसको pop बोलूंगा। अब 33 हो गया pop. I continue, press 2. 22 हो गया pop. I guess that was the last element. Okay, press 1 to continue, again pop. Now the stack is empty, stack underflow, और 0 आ गया, return करके 0 आ गया, popped from the stack. ठीक है ना। अब इसमें peak करना है हमें, क्या करना है? peak. We have less than 1 minute left. ये हमें खोलूंगा अब। यहाँ पे एक तो सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं, एक पीक भी हो रहा है, s डॉट पीक। पीक क्या करता है? I cut it and put it to the third. It will return the top element. पीक करता है रिटर्न एलिमेंट कौन सा? Top. टॉप वाला। Top. So let me go to the peak. पीक ऑपरेशन जो है int peak रिटर्न करता है int, यानी कि वो रिटर्न करेगा जो टॉप पे होगा और उसको डेक्रीमेंट नहीं करेगा। पीक ऑपरेशन इज हियर इफ टॉप इज लेस देन 0। पहले अगर टॉप लेस देन 0 है उसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो पीक क्या करोगे, है ना। हम कह रहे हैं पीक करो टॉप का एलिमेंट, int x इज इक्वल टू f टॉप रिटर्न x, उस x को आप वापस करोगे रिटर्न, ठीक है ना। तो ये पीक से क्या हो जाएगा आपका टॉप वाला एलिमेंट डिस्प्ले। टॉप वाला एलिमेंट ये हो जाएगा। We can say like this here, c out s dot peak, यहाँ पे मैं c out ही करूंगा, ये मैं c out ही करूंगा, ये वाला c out peaking top element